So the interior of the car looks pretty neat. उसमें भी काफ़ी सारे options है. You can change the color. Hello and welcome back to WCAD Automotive Detailing and Car Care Services. Today we are in the age of BS6 vehicles and cars are getting costlier and costlier day by day. Today is 2nd of April 2021 and we have heard that since 1st of April the car prices are gonna be again on the higher side. Today's world there are a lot of people who are looking for their cars restoration and one of such cases there with us today. We have got Honda City of 2009 and the car is up for complete repaint and few cosmetic changes inside. So yes, car is up for complete paint and there are a lot of dents on the car. I'll just show you how the condition of the car is. Let's have a quick walk around and we will be doing the entire denting, painting, and then we will be doing some interior rework and we will be handing over the car to the customer in 7 to 8 days. So here we start with the video. Please ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आप लोग इस पे कैसे कैसे काम किया है, क्या क्या काम किया है, and how the car looked when it entered and how the car is looking when it's completely done. So this is 2009 model and there are a lot of denting and painting work to be done. We start with the front bumper. Here is one. The mirror needs to take care. There are a lot of stone chips on the car. You can see this white spots. Again, here are some scratches and dents over here. The major denting work comes here. This part has been damaged a bit. There is a major dent on the bumper. And again, the roof line needs to work. There is no dent on the roof, but yes, we have to work on that as well. Here it is. So you have to take a lot of care of the bumpers, especially this area जहाँ पे उसका fittings already निकल चुका है. Same is the case with the front bumper as well. If you can see this. So yes, the overall car has got minor to major dents. There are small dents like this at many places. So we suggested for the entire repaint of the car, and the car is almost 11 years old, so it deserves the repaint. Let's have a quick look at the interior. So the interior of the car looks pretty neat, but we are gonna change the silver lines to wooden finish. Basically this is the central console and this will be turned into wooden finish. We will be doing the hydro dip of this part. We'll be taking care of the AC vents as well. And this AC vents, the right and the left hand side AC vent I think is not removable, so this won't be changed, but wherever we have got silver finish we will be turning it into wooden finish. So the steering, gearbox console, armrest, or you can say power window socket, the silver garnish finish which is on the doors, everything will be taken care of. Now quickly we will be heading towards our painting section and we will be continuing this video there. जब गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं एक तरफ तो दूसरी तरफ लोग रिस्टोरेशन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है कि जिनकी गाड़ियाँ अच्छे कंडीशन में है, they plan to keep it for more time, तो restoration is one of the best process now and गाड़ी की लाइफ और बढ़ जाती है. एंड अगर किसी को सिर्फ पॉइंट A से पॉइंट B जाना है, सिर्फ इतना ही कम्यूट करना है, किसी को ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना है, तो बेटर यही हो जाता है कि वो अपने कार को रिस्टोर करे. स्पेशली द कार विद द एज ऑफ 6 to 7 years you can restore it back to the good life and you can use it back again. उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है. You can change the color, you can change the color on your RC book in the RTO as well. तो काफ़ी हद तक आपकी गाड़ी फ्रेश हो जाती है, न्यू लुक आ जाता है. इसके बाद अगेन यू कैन ऐड लॉट ऑफ एक्सेसरीज टू द कार, इंटीरियर एक्सटीरियर, विच अगेन विल गिव यू सम गुड एंड फ्रेश लुक टू द कार. तो थोड़ा सा और 1-2 साल रखने का गाड़ी का प्लान बढ़ जाता है एंड यू कैन सेव ऑन लॉट ऑफ मनी पेइंग इंटरेस्ट ऑन EMIs एंड एवरीथिंग. इट इज़ ऑल इंडिविजुअल चॉइस. कुछ लोग होते हैं जिनको 5 साल से ज़्यादा गाड़ी यूज़ नहीं करनी है, कुछ लोग होते हैं जिनको पहली गाड़ी है इसलिए बहुत लंबे अरसे तक रखना है. नाउ गवर्नमेंट इज ऑल्सो गेटिंग स्ट्रिक्ट अबाउट 15 years एंड 20 years वाला रूल. तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल थिंकिंग कि रिस्टोरेशन करके फ़ायदा होगा कि नहीं, खर्चा करके फ़ायदा है कि नहीं. बट द कार विद द एज ऑफ 7 to 8 years, yes, you can put some more money and get the car restored back and again get it back to the life and use it for more another 3-4 years. तो वो पैसा भी आपका वसूल हो जाएगा. This is my personal opinion. Rest is up to, as I said, it is an individual choice, right? So here it is. The Honda City is at the working bay, paint bay, and we will start with the denting painting work first. And slowly and steadily हम लोग एक-एक करके प्रोसेस में डालने की कोशिश करेंगे. अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे. Stay tuned to the entire video and आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा.
सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द कार. वी हैव टू रिमूव लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि हम लोग को जो अंदर का सिल्वर पैनल है उसको हाइड्रोटिप करना है इन वुडन शेड. तो उसके वजह से हम लोग को डोर पैनल्स खोलने पड़े. एसी का जो सेंट्रल कंसोल है यूनिट उसको पूरा उतारना पड़ा. तो उसके वजह से जो अंदर का हेड यूनिट था म्यूजिक सिस्टम का, वही पूरा उतारना पड़ा. तो यस, दिस इज अ लेबर इंटेंसिव जॉब एंड सो फार दिस इज द सिचुएशन ऑफ द कार. वी आर इनटू डे 3 ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ होंडा सिटी एंड वी आर डूइंग गुड सो फार. तो हमारे पेंटर हमारे साथ में है एंड वी विल लेट यू नो कि आगे का प्रोसेस क्या है और कहाँ तक आए हैं और कितना काम बाकी है. तो अभी अपने गाड़ी में क्या क्या काम बाकी है? अभी बाकी है कि अपना प्राइमर हो चुका है. प्राइमर हो चुका है, कटिंग चालू है. कटिंग होने के बाद अपन क्या चेक पुट्टी करेंगे. चेक पुट्टी करने के बाद मास्किंग होएगा, पूरी तरह से मास्किंग होएगा. जैसे मतलब गाड़ी का ऊपर जिधर कलर चिपकना चाहिए, उधर जिधर लगना चाहिए उधर उसको छोड़ के और दूसरा जगह सब पैकिंग होएगा. पैकिंग होने के बाद अपन ना एक डिग्रेचिंग करके डिग्रेटिंग होगा. हाँ, डिग्रेचिंग होएगा. डिग्रेचिंग होने के बाद स्प्रे होएगा, कलर स्प्रे और क्लियर कोट. तो दोनों कोट होने के बाद गाड़ी फाइनल में हो जाएगा. तो टोटल कितना कोट करने वाले अपन? अभी 2 कोट होएगा. 2 कोट और होगा. ओके. बेस कोट के बाद क्लियर कोट. ओके, बेस कोट बाकी है, बेस कोट के बाद क्लियर कोट बाकी है. तो बेसिकली अभी इसके बाद एक प्रोसेस है. उसके बाद पूरी गाड़ी मास्किंग करेंगे, उसके बाद सैंडिंग करेंगे, हल्का हल्का सा जहाँ पे लैकर निकालना है वहाँ पे निकाल देंगे. उसके बाद में जो सर ने कहा वो प्रोसेस होगा. तो और बेसिकली कितना 3-4 दिन जाएगा? हाँ, 3-4 दिन जाएगा. और 3 से 4 दिन इसमें जाने वाला है. वी वांट टू हरी बिकॉज हम लोग को गाड़ी बहुत अच्छे से फिनिश करनी है. देयर आर लॉट ऑफ इंटीरियर वर्क आल्सो टू बी डन एट आवर स्टूडियो. सो स्टे ट्यून. गाड़ी का रियर बम्पर है. यू कैन सी कि इतना बड़ा पोर्शन में इसके प्राइमर लगा हुआ है. तो कितना बड़ा डेंट था. इसका थोड़ा सा इफेक्ट अंदर पीछे बॉडी लाइन पे भी हुआ था, वो भी रेक्टिफाई किया हम लोगों ने. अभी इसके बाद अभी ये फिट होगा, फिर मज़ा आएगा. और लगभग कितना % काम हो गया है कलर का? 85% हो गया. 85% इट इज़ ऑन फिनिशिंग स्टेज और 25% सॉरी और 15% बचा है. तो होपफुली 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद ये गाड़ी वापस अपने स्टूडियो जाएगी. वहाँ जाने के बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग वहाँ जाके दिखाएंगे. तो अभी फिलहाल तो हम लोग कलर का काम कर रहे हैं और 1-2 शॉट्स आएंगे इसमें. तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंटायर वीडियो. So गाड़ी का पूरा डेंटिंग पेंटिंग का काम हो गया एंड द कार इज बैक टू आवर डिटेलिंग स्टूडियो. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू अलॉय व्हील्स क्लीनिंग. अलॉय व्हील्स डीप क्लीन होने जा रहा है इसका, बिकॉज अलॉय व्हील्स हम लोग को खास ध्यान देने के लिए कस्टमर ने बोला था. सो ये पूरा हिस्सा है जो अलॉय व्हील्स का, उसको डीप क्लीनिंग की सख्त जरूरत है. एंड अभी आप देख लो कैसे दिख रहा है. जब क्लीन हो जाएगा तो उसमें बिफोर आफ्टर का बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आएगा. दिस इज द राइट साइड प्रोफाइल ऑफ द कार. इसमें छोटे मोटे निक्स एंड बिट्स अभी भी बाकी है. क्रोम लाइन हम लोग को अभी भी ठीक से फिट करना है. दिस आर द ओरिजिनल क्रोम लाइन जो कस्टमर ने जब गाड़ी ली थी तभी शोरूम से डलवाए थे. तो ही इंसिस्टेड कि इसको मत निकालो, उसको वापस रीयूज करो. तो छोटे मोटे चीज़ें अभी भी बाकी है. बड़े बड़े डेंट्स थे. ये पिलर पे भी डेंट था बहुत बड़ा जो अभी गायब हो चुका है. दिस इज द रियर पार्ट ऑफ द कार. यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेंट था, वो भी निकाल दिया है. जहाँ पे क्रोम लाइनिंग्स है वो हम लोग को अभी भी ठीक करने बाकी है. उसका डीप क्लीनिंग होगा. उसके बाद एक कोट वापस उसको वैक्स का लगेगा. उसके बाद गाड़ी कंप्लीटली रेडी हो जाएगी. हम लोग को हेडलाइट्स पे भी ध्यान देना है बिकॉज वी हैव टू रिस्टोर द हेडलाइट्स एज वेल. दिस इज हाउ द कार लुक्स आफ्टर कंप्लीट पेंट. जब कार हमारे पास आई थी तो तकरीबन 12 से 13 डेंट्स थे गाड़ी पे. इतने डेंट्स और इतने जगह पे अलग अलग डेंटिंग पेंटिंग होने के बाद जो कंपनी का पेंट पहले दिख रहा था कहीं कहीं पे ऑलरेडी काफ़ी सारे टचअप्स थे इसमें. फिर हम लोग भी इसमें टचअप करते तो ओवरऑल गाड़ी का लुक बहुत खराब हो जाता था. इसलिए भी सजेस्टेड आवर क्लाइंट टू गो फॉर कंप्लीट रिस्टोरेशन. और अभी ये सब जो धूल मिट्टी लगी हुई है ये साफ होने के बाद आपको उसका पेंट का रियल इफेक्ट मालूम पड़ेगा. हम लोगों ने अच्छी तरह से पेंट बना के उसको ओरिजिनल पेंट की तरह ही वापस मारा हुआ है. एंड वी डिड ऑल द प्रोसेस प्रॉपर्ली एंड हेंस द कार इज लुकिंग वंडरफुल. और वंस वी गो थ्रू ऑल आवर डिटेलिंग पार्ट नाउ ये और अच्छी दिखेगी.
तो हियर वी आर इन होंडा सिटी वंस अगेन एंड फाइनली इस गाड़ी का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर रेस्टोरेशन प्रोसेस मुझे जो लगी है वो है इसका वुडन इंटीरियर्स, जो हम लोग ने बहुत ही दिल लगा के अच्छे सा कलर चूज करके फिर किया है। एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ ऐसी है कि हम लोग इसका जो ये डोर फैब्रिक है वो इसके साथ मैचिंग वाला ठीक से ढूंढ नहीं पाए, बिकॉज हम लोग को जो मिल रहा था वो और कस्टमर को जो चाहिए था वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था। सो वी थॉट कि अभी लॉकडाउन भी लग गया है तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, अच्छा सा फैब्रिक ढूंढ के देन वी विल गेट rid of all these problems. But for now car is totally ready और अंदर से भी हम लोग ने इसको बहुत अच्छी तरह से इंटीरियर क्लीनिंग किया है। सीट्स वगैरह भी इतने अच्छे से साफ़ हो गए कि लग रहा है कि नया सीट्स डाल दिया है। रूफ वगैरह भी बहुत ढंग से साफ़ हुआ है इसका हम आपको एक 360 लुक दे देंगे। सो येस वी टुक टाइम एंड वी डिड इट वेरी नाइसली। बेसिकली पेंट बहुत जल्दी इसका कंप्लीट हो गया था, जो एक्सटीरियर का काम है वो बहुत जल्दी कवर कर लिया हम लोगों ने। हम लोग को टाइम लग रहा था टू फेच द प्रॉपर सूटेबल फैब्रिक फॉर दिस डोर पैड्स हियर, लेकिन वो मिला नहीं एंड वी एंड अप नॉट डूइंग दिस नाउ एंड विल बी डूइंग दिस लेटर। बट येस ये था एक रिस्टोरेशन वीडियो होंडा सिटी के ऊपर। वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट एंड टू गेट बैक दिस कार इन द ओरिजिनल फील, नया गाड़ी का फील देने की कोशिश की हम लोगों ने। एंड वी कैन प्राउडली से दैट दिस कार इज नाउ मोर 5 years यंगर। आई मीन 5 साल तक इनको कुछ देखने की जरूरत नहीं है एंड इफ इट इज मेंटेन प्रॉपरली देन डेफिनेटली वो और भी ज़्यादा टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो हियर इज द 360 व्यू एंड वी रोल्स ऑफ द कार। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। सो हियर वी आर विद होंडा सिटी। फाइनली इसका पूरा पेंटिंग का काम खत्म हो गया है, तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में नज़दीक से देखते हैं। तो दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ द कार आफ्टर पेंट। हम लोग ने ग्रिल्स वगैरह चेंज नहीं की है, लेकिन हम लोग इसको डिटेल क्लीनिंग में बहुत अच्छे से साफ़ किया है। हेडलाइट इसकी ऑलरेडी काफ़ी डल थी तो उसको हमने काफ़ी हद तक रिस्टोर करने की कोशिश की है, लेकिन आई थिंक हम लोग को इसको चेंज करना चाहिए था तो और थोड़ा सा इसका फ्रंट का लुक एनहांस होता। सो दिस इज द लेफ्ट प्रोफाइल ऑफ द कार एंड अलॉय व्हील्स आर नॉट पेंट। हम लोग ने इसको डिटेल क्लीन किया हुआ है, इसलिए कुछ ज़्यादा ये लोग चमक रहे हैं। And just have a look at the alloy wheels. This is beautifully cleaned actually. Mirrors are paint. The plastic parts of the car are not paint. हम लोग ने इसको ड्रेसिंग किया हुआ है। Chrome parts wherever they are, especially the window lines, हम लोग ने इसको निकाल के साफ करके ठीक से वापस बिठाया है and hence it is looking very much clean. Door handles have been polished and cleaned properly. Everything is in detail clean. जब गाड़ी पूरी तरह से पेंट होके वर्कशॉप से हमारे पास आई, उसके बाद हम लोग ने WCAD स्टाइल में इसको और चमकाने की कोशिश की है, उसके वजह से ये ग्लॉस और ज़्यादा दिखता है। So this is golden beige color and we have got the same color done again on this car. So this is the rear portion of the car. In this we were in a dicey mind as if हम लोग सोच रहे थे कि जो सेंसर्स है उसको ब्लैक करे या बॉडी कलर ही रखे। जब गाड़ी हमारे पास आई थी तो बॉडी कलर ही था। शोरूम से भी जब गाड़ी आई तभी कस्टमर को बॉडी कलर ही सेंसर्स मिले थे, तो मैंने सोचा कि इसको बॉडी कलर ही रखेंगे, लेकिन हालांकि अगर ब्लैक करते तो ज़्यादा अच्छा दिखता। So this is a spoiler which has again from the company itself. It has been painted, logos has been cleaned. We are yet to paste the Honda City badges which are cleaned and kept aside. वो हम लोग अभी थोड़ी देर में लगा देंगे, तो डाल देना बाद में। There was a big dent on the bumper over here. We have got rid of that. बहुत ही अच्छे से काम हुआ है, पेंट भी बहुत फर्स्ट क्लास हुआ है। We have cleaned the chrome tip of the exhaust as well. So this gives a very enhanced look at the rear end of the car. Finally, last but not the least, right hand side profile of the car. अगेन वी वर इन डुअल माइंड कि हम लोग इसकी मड फ्लैप जो है वो ब्लैक करें। बॉडी कलर्ड ही थे, लेकिन हमने सोचा कि ब्लैक करेंगे तो अच्छा दिखेगा, बट वी एंडेड अप डूइंग द सेम विच वाज विद द कंपनी स्टाइल। तो जब गाड़ी रिस्टोरेशन के लिए हमारे पास आती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो ओरिजिनल पार्ट्स गाड़ी में लगे हुए हैं, जो टूटे नहीं है, जो अच्छे शेप में है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा हमारी डिटेलिंग स्टूडियो में ढंग से साफ करके उसको अच्छे शेप में, अच्छे कंडीशन में लाए। सो इन दैट केस वी वर्कड ऑन ग्रिल, जो इसमें ऑलरेडी स्टॉक ग्रिल है जो अच्छी दिख रही है। इसके बाद वाले जो वेरिएंट्स आए थे, दिस इज द टॉप एंड वेरिएंट ऑफ द कार। इसके बाद जो टॉप एंड वेरिएंट आया था उसमें इसके क्रोम हैंडल्स आए थे। कस्टमर्स ने हमारे जो भी क्रोम के एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो बहुत सोच समझ के तभी उन्होंने गाड़ी में आफ्टर मार्केट बिठाया, वो भी हम लोगों ने रिस्टोर करे। छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोगों ने बहुत बारीकी से ध्यान दिया हुआ है। इफ़ यू कैन सी द वाइपर ब्लेड्स ऑफ द कार, इट लुक्स लाइक ये वाइपर ब्लेड नए डाले हुए हैं, उसका आर्म्स नया डाला हुआ है, उसके जो नीचे की जो ये फाइबर की शीट है वो नहीं डाली हुई है, बट इट इज़ नॉट न्यू, इट हैज़ बीन प्रॉपरली क्लीन एंड वी हैव गॉट सम गुड ड्रेसिंग फॉर मेटल्स एज वेल एंड प्लास्टिक एज वेल। वो हमने यूज़ किए हैं, उसका ये रिजल्ट है। इंटीरियर में हम लोगों ने बहुत दिल से काम किया हुआ है, स्पेशली द वुडन ट्रिम जो हम लोगों ने बहुत सोच समझ के हर एक चीज़ उसमें जो डाली हुई है, दैट वॉज एज पर कस्टमर्स डिमांड एंड आई होप वो देख के बहुत सेटिस्फाई हो जाएंगे। दिस इज़ वाई वी वर्क सो हार्ड एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इंडस्ट्री। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत की हम लोगों ने रिस्टोरेशन के इस वीडियो पे। प्रॉबेबली दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन आवर वी केयर यूट्यूब चैनल ऑफ रिस्टोरेशन। इसके बाद और भी आएंगे।
probably that car. So stay tuned on this channel, there is a lot more coming. WCAD Automotive Detailing Studio is located in Thane. Description में सारे contact details डाल दिए जाएंगे. Please contact कीजिए, कोई भी सवाल हो regarding ceramic coating, paint protection film, sun control film, denting, painting, जो भी आपके मन में गाड़ी और बाइक के रिलेटेड सवाल रहेगा आप कर सकते हो. हम लोग आपकी सेवा में हाजिर है. Till then, take care of yourself. लॉकडाउन वापस इम्पोज किया जा रहा है, so be careful and take care of your family members.